ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। US ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, PM ਮੋਦੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ। ਲਖਨਊ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। US ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ Z ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨਾਤੋਲੀ ਐਟੋਨੋਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐਟੋਨੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਬਾਸ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Explain to Americans what exactly will they face if this happens? Sure. As the president talked about in his speech, we are aware that, again, when America stands for her principles and all of the things that we hold dear, it requires sometimes for us to put ourselves out there in a way that maybe we will incur some cost. And in this situation, that may relate to energy costs, for example. But we are taking very specific and appropriate, I believe, steps to mitigate what that cost might be if it happens. Without provocation or justification, Russia has amassed more than 150,000 troops around Ukraine's borders, in Russia, Belarus, occupied Crimea. Russia says it's drawing down those forces. We do not see that happening on the ground. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. We don't know precisely how things will play out, but here's what the world can expect to see unfold. In fact, it's unfolding right now, today, as Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly, nor do I take lightly, based on my family history. In the past few days, Russian media has already begun to spread some of these false alarms and claims to maximize public outrage,
to lay the groundwork for an invented justification for war. Today, that drumbeat has only intensified in Russia's state-controlled media. We've heard some of these basic allegations from Russian-backed speakers here today. Second, in response to this manufactured provocation, the highest levels of the Russian government may theatrically convene emergency meetings to address the so-called crisis. The government will issue proclamations declaring that Russia must respond to defend Russian citizens or ethnic Russians in Ukraine. Next, the attack is planned to begin. Russian missiles and bombs will drop across Ukraine. Communications will be jammed. Cyber attacks will shut down key Ukrainian institutions. After that, Russian tanks and soldiers will advance on key targets that have already been identified and mapped out in detailed plans. We believe these targets include Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million people. And conventional attacks are not all that Russia plans to inflict upon the people of Ukraine. We have information that indicates Russia will target specific groups of Ukrainians. We've been warning the Ukrainian government of all that is coming. And here today, we are laying it out in great detail with the hope that by sharing what we know with the world, we can influence Russia to abandon the path of war and choose a different path. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਲੈਕਸੀ ਰੇਜ਼ਨੀਕੋਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੇਜ਼ਨੀਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਠੰਡ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਡੋਨਬਾਸ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਲਦ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਸ ਪਾਇਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਝ 94 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਲਗਭਗ 700 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 257 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, PM ਮੋਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, संवाद की एक विशेष परंपरा विकसित की है। आज का ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। इसी क्रम में आज शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में जो प्रावधान हुए हैं उस पर आप सभी स्टेक होल्डर्स से अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है, वहां फिनटेक से जुड़े संस्थान आए, इसे भी प्रोत्साहित किया जाए। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एवीजीसी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में
बहुत मदद करने वाला है। साथियों, कोरोना आने से काफी पहले से देश में मैंने अनेक बार डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूं। जब हम अपने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, जब हम डेटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे थे, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे थे, तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी जरूरत क्या है। लेकिन महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों की अहमियत को सबने देख लिया है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। इनोवेशन हमारे यहां इंक्लूजन सुनिश्चित कर रहा है और अब तो देश इंक्लूजन से भी आगे बढ़कर इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। इस दशक में हम जो आधुनिकता शिक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं, उसके आधार को मजबूत करने के लिए इस साल के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है। इसलिए ई विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो, डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। ये भारत के सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में गांव हो, गरीब हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है। साथियों, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट्स होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और रीलर्निंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई और सभी स्टेक होल्डर्स, सबसे मेरा आग्रह है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी तेजी से काम शुरू कर सके, ये सुनिश्चित होना चाहिए। शुरू से ही ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर चले, ये देखना हम सभी का दायित्व है। साथियों, देश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करने का सरकार का इंटेंट और उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपके सामने है। अब आपको अपने प्रयासों से इस इंटेंट को जमीन पर उतारना है। आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा
बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। भारतीय भाषाओं में ये ई कंटेंट इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो, इस पर काम करना है। भारतीय साइन लैंग्वेज में भी हम ऐसे पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं जो दिव्यांग युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। इसमें भी निरंतर सुधार करते रहना बहुत जरूरी है। डिजिटल टूल्स, डिजिटल कंटेंट को कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाए, इसके लिए हमें टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेन करने पर जोर देना होगा। साथियों, डायनामिक स्किलिंग आत्मनिर्भर भारत के लिए और ग्लोबल टैलेंट डिमांड के लिहाज से भी बहुत अहम है। पुराने जॉब रोल्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, उनके अनुसार हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को तेजी से तैयार करना होगा। इसलिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, डेस्टैक, ई पोर्टल और ई स्किलिंग लैब की जो घोषणा बजट में की गई है, उसके पीछे यही सोच है। साथियों, आज टूरिज्म इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री, एनिमेशन और कार्टून इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। इन सेक्टर्स से जुड़े मौजूदा उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए हमें ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इस सेक्टर के विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसी तरह अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग देश की जरूरत भी है और युवाओं के लिए अवसर भी है। आजादी के अमृत काल में भारत अपने अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए AICTE जैसी संस्थानों से देश की ये विशेष अपेक्षा है कि इससे जुड़ी पढ़ाई और ट्रेनिंग में निरंतर सुधार हो। साथियों, एजुकेशन सेक्टर के द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को कैसे सशक्त करेंगे, इस पर आप सभी के इनपुट्स देश के काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि हम सभी के साझा प्रयासों से बजट में तय लक्ष्यों को हम तेजी से लागू कर पाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा है, गांव तक अनुभव ये आ रहा है कि स्मार्ट क्लास के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, दूर सुदूर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, या हमारी जो नई कल्पना है कि 1 क्लास 1 चैनल, गांव तक हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। बजट में इसका प्रावधान है, हम इसको लागू कैसे करें। आज जब हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो आज अपेक्षा ये नहीं है
कि बजट कैसा हो, क्योंकि वो तो हो गया। अब अपेक्षा आपसे ये है कि बजट की जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम सिमलेसली नीचे लागू कैसे करें। आपने बजट का अध्ययन किया होगा, आप फील्ड में काम करते हैं। बजट और आपके काम और एजुकेशन डिपार्टमेंट की, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अपेक्षाएं, इन तीनों को मिला करके अगर हम एक अच्छा रोड मैप बना देते हैं, हम टाइम बाउंड काम की रचना कर देते हैं। हमारे यहां आपने देखा होगा कि बजट हमने करीब 1 महीना प्रीपोन कर दिया। पहले बजट 28 फरवरी को होता था, अब इसको 1 फरवरी को ले गए। क्यों? तो बजट 1 अप्रैल से लागू हो उसके पहले बजट पर हर कोई डिटेल व्यवस्था कर ले, ताकि 1 अप्रैल से ही बजट को हम धरती पर उतारना शुरू कर सकें, हमारा समय बर्बाद ना हो। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें काफी, अब जैसे आपने देखा होगा, ये ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। अब देश ने सोचा है कि बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक स्कूलों को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की ओर आगे बढ़ेंगे। अब सैनिक स्कूल कैसे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके लिए बजट देने वाली है। तो सैनिक स्कूल जो है बनेंगे, उसके टीचर की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे होगी। आज जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, उसमें सैनिक स्कूल के टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें फिजिकल पार्ट भी होगा, उसको हम कैसे कर सकेंगे। उसी प्रकार के स्पोर्ट्स हमारे देश में इस ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स ने एक विशेष आकर्षण पैदा किया है। स्किल की दुनिया का ये विषय तो है ही है, खेल जगत का भी है, क्योंकि टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इसने भी अब स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी जगह बना ली है। तो हम जब ये सोचते हैं उसमें हमारा कोई रोल हो सकता है क्या? कभी हमने सोचा है जिस देश में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, इतने बड़े शिक्षा संस्थान, आज हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो, क्या ये हमारे लिए ठीक है क्या? हम देखें हमारे देश से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अनाप शनाप धन खर्चा हो रहा है, वो परिवार कर्ज कर रहा है। क्या हम हमारे देश में दुनिया की यूनिवर्सिटीज को ला करके हमारे बच्चों को हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में और कम खर्चे में पढ़ाई के लिए उनके लिए चिंता कर सकते हैं? यानी प्री प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक पूरा हमारा जो खाका है वो 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने। हमारे बजट में जो कुछ भी बना है ठीक है, इसके बावजूद भी किसी को लगेगा कि नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता, अगले साल सोचेंगे, इसके लिए अगले बजट में सोचेंगे। अभी तो जो हमारे पास उपलब्ध बजट है, उस बजट को हम धरती पर कैसे उतारें, अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे उतारें, ऑप्टिमम आउटकम कैसे मिले, आउटपुट नहीं, ऑप्टिमम आउटकम कैसे मिले। अब जैसे अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब काम देखने वाले लोग अलग हैं, लेकिन संबंध तो उसका किसी न किसी एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इनोवेशन की बात करनी है तो अटल टिंकरिंग लैब को हम कैसे आधुनिक बनाएंगे। यानी ये सारे विषय ऐसे हैं कि बजट के परिप्रेक्ष्य में और नेशनल एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में ये पहला बजट ऐसा है जो हम तुरंत लागू करके आजादी के इस अमृत महोत्सव में अमृत काल की नींव रखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें लाना जरूरी है, आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। आप जानते हैं जब बजट प्रस्तुत होता है उसके बाद एक ब्रेक पीरियड होता है और सभी सांसद मिलकर के छोटे 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 ग्रुपों में बजट की बारीकी से चर्चा करते हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा होती है।
अच्छी चीजें उसमें जो उभर करके आती है। लेकिन हमने उसको एक दायरा और बढ़ाया। सांसद तो इन दिनों ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम सीधे डिपार्टमेंट के लोग, स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं। यानी हमने एक प्रकार से सबका प्रयास, ये जो मैं कह रहा हूं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बजट में भी सबका प्रयास ये बहुत आवश्यक है। बजट ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है जी। बजट अगर हम सही ढंग से, सही समय पर, सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे सीमित संसाधनों से भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और ये तब संभव होता है कि बजट से क्या करना है, क्लैरिटी अगर सबके मन में आ जाए। आज की चर्चा से एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्किल मिनिस्ट्री, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपकी बातों से पक्का होगा कि ये बजट बहुत अच्छा है, टिकना है, लेकिन इसमें ये करेंगे तो मुश्किल होगा, ये करेंगे तो ठीक होगा। बहुत प्रैक्टिकल बातें उभर करके आएगी। खुल करके आप अपने विचार रखिए। मूल बात है, तत्वज्ञान की चर्चा नहीं है, व्यवहार जीवन में इसको धरती पर कैसे उतारना, अच्छे ढंग से कैसे उतारना, सरलता से कैसे उतारना, सरकार और सामाजिक व्यवस्था, इसके बीच में कोई दूरी ना हो, मिलकर के काम कैसे हो, इसलिए ये चर्चा है। मैं आप सबका फिर से एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। पूरे दिन भर जो आपकी चर्चाएं चलेगी, उसमें से बहुत ही अच्छे बिंदु निकलेंगे, जिसके कारण डिपार्टमेंट तेज गति से निर्णय कर पाएगा और हम ऑप्टिमम हमारे संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अच्छा आउटकम के साथ अगले बजट की तैयारी करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ। ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ एवरीवन। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂक्स। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਔਮਨਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਲਈ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਯੂਥ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ। ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। पूरे यूपी में
पूरे यूपी में एक भी नहीं स्कूल बनाया, पूरे यूपी में एक भी स्कूल नहीं बनाया। अच्छा, कोई कॉलेज बनाया हो? पूरे यूपी में कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी? हमने दिल्ली में 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई है। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो पिछले 5 साल में? योगी जी ने एक भी नहीं बनाई। कह रहे मूर्ख बनाया। कोई अस्पताल बनाया हो? दिल्ली में हमने पिछले 5 साल में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ढेरों नए अस्पताल बनाए। यहां पे कोई नई डिस्पेंसरी बनाई हो किसी गांव में, किसी शहर में? कोई नया एक तो बनाया होगा यार, तुम लोगों को पता नहीं होगा। कोई अस्पताल नहीं बनाया पूरे यूपी में। नौकरी कितने बच्चों को दी? नौकरी कितने बच्चों को दी? दिल्ली में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, 10 लाख बच्चों को। 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं दिल्ली में। मैं भी अखबार उसमें पढ़ रहा था, यूपी का बजट 5 लाख करोड़ है, 5 लाख नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी। तो ये 5 लाख करोड़ गया कहां? घोटाले में। ये सारा पैसा गया कहां? हर साल कहां जा रहा है ये सारा पैसा? भाई साहब, तभी मैं कहूं, पिछले कुछ दिनों से ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी, ये चारों मिलके, आपने टीवी में अखबारों में देखा होगा, चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। शेम शेम। ये चारों मिलके खूब जोर जोर से, चारों एक ही आवाज में कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। शेम शेम। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आतंकवादी हूं भाई साहब? मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, इन लोगों ने सच्चा लाल। इन लोगों ने पिछले 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहां पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। इनके 70 साल इन 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते। या क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा 70 साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी क्या के वोट मांग रहे हैं? मैंने क्या आतंकवाद बताओ? कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने क्या आतंकवाद कर दिया? मैंने कहा मोदी जी को, मोदी जी पिछले 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई,
मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये वो बच्चे समझ गए। भ्रष्टाचार का एक ठिकाना। वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहाँ भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। जिसको मर्जी देखो आतंकवादी बोल देते हैं। कल ये थोड़े दिन पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कहते हैं देश के सारे किसान आतंकवादी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, इस बार जब बटन दबाने जाओ इनको बता देना कौन आतंकवादी है, कौन ये आतंकवादी है कि तुम आतंकवादी हो। भारत माता की। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। मैं बताता हूं मामला क्या है। आतंकवादी 2 तरह के होते हैं। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। भ्रष्टाचार का एक ठिकाना। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। भ्रष्टाचार का एक ठिकाना। भ्रष्टाचार का एक ठिकाना। भगत सिंह, मैं भगत सिंह का चेला हूं। भगत सिंह की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत पूजा करता हूं उनकी। भगत सिंह ने अंग्रेजों में खौफ पैदा कर रखा था। भगत सिंह का नाम सुनते थे अंग्रेजों को नींद नहीं आती थी। अंग्रेज भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे कि भगत सिंह आतंकवादी है। आज इन सारे भ्रष्टाचारियों को मेरे नाम से नींद नहीं आती। रात को सपने में आता हूं तो डर के उठ खड़े होते हैं ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर अब मेरे को आतंकवादी बोल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, आपके जितने यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हो उनको फोन कर लेना, उनको फोन करके पूछना भाई दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ काम करा, दिल्ली में केजरीवाल के काम से खुश हो। अगर वो कहें कि खुश नहीं है, मेरे को यहां पे यूपी में वोट मत देना। दिल्ली का एक एक आदमी खुश है भाई साहब, हमारे काम से एक एक आदमी खुश है। पहले 67 सीट दी, उसके बाद 62 सीट दी। दिल्ली से बीजेपी और कांग्रेस दोनों साफ हो गई, दोनों पार्टियां खत्म हो गई बीच दिल्ली से। यहां भी उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दे दो, देखो सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये हम ही करेंगे। ये बाकी वाले झूठ बोल रहे हैं, जितने कह रहे हैं करेंगे, ये सारे झूठ बोल रहे हैं।
हम ही कर सकते हैं। 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, ये करना आसान नहीं है, ये मैजिक है, मैजिक। 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली ऐसे हो सकता है? दिल्ली में हो रहा है, मैजिक है ये, मैजिक केजरीवाल को ही आता है और किसी को नहीं आता। दिल्ली में हमने स्कूल बड़े शानदार कर दिए, अस्पताल बड़े शानदार कर दिए, यहां भी करेंगे। आप एक मौका दो, यहां पे भी बच्चों को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महिला को 1000 रुपए हर महीने देंगे। मेरे पास एक आदमी आया, बोला केजरीवाल जी गारंटी तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, जीतोगे क्या? मैंने कहा देखो भाई साहब, सारे जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ये दिखा रहे हैं कि हंग हो सकता है कि किसी को भी बहुमत ना मिले। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी और अगर हम सरकार में शामिल हुए तो जिसकी भी सरकार होगी उसे गारंटी मैं पूरी करा दूंगा सारी। तो ये सारी बढ़ चढ़ के वोट देना, जितनी भी सीटें आए चिंता मत करना, जितनी भी सीटें आएंगी अगर हंग हाउस हुआ बीजेपी को बाहर रखने के लिए, अगर हम सरकार में गए सारी गारंटियां मैं पूरी करा दूंगा, जितनी गारंटियां मैं देके जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मेरी अब आप लोगों से निवेदन है, मोहनलालगंज से सूरज कुमार को भारी बहुमत देके जिताएं, लखनऊ कैंट से इंजीनियर अजय कुमार, लखनऊ पूर्वी से इंजीनियर आलोक सिंह, लखनऊ वेस्ट से पंडित राजीव बख्शी, लखनऊ मध्य से नदीम अशरफ जैसी, लखनऊ उत्तर से अमित श्रीवास्तव त्यागी और सरोजनी नगर से रोहित श्रीवास्तव। ये सारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत देके, अपना आशीर्वाद देके, अपना विश्वास देके आप लोग जिताइए और भारी बहुमत से इन लोगों को विधानसभा में पहुंचाइए। भारत माता की। ਲਾਲੂ यादव ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੋਰਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 139.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਂਚੀ ਰਿਮਸ ਦੇ ਪੇਇੰਗ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।